रिवाइज करना पड़ेगा। एंड देयर all of you remembered, not remembered. Okay. So please remember it. This sloka is very simple. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जन्मादयस्य तो दया वितरता चार्थेषु अभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादयस्य तो दया वितरता चार्थेषु अभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। Yes, and would like to recite. Recite. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadiyasya to dayam itartas चार्थेषु अभिज्ञस्वराः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृडं यथा विनिमयो। एक साथ तेजो वारि मृडं यथा विनिमयो एक साथ जाएगा। तेजो वारि मृडं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण। कोई और? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादयस्य तो दया वितरता चार्थेषु अभिज्ञस्वराः तेने ब्रह्म मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृडां यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा जब भी गा रहे हैं ना, याद रखना है कि जन्मादयस्य तो न्यास इतरतः एक साथ बोलना है, तोड़ तोड़ के नहीं बोलना। फिर चार्थेषु अभिज्ञस्वराः एक साथ बोलना है। दिस इज द वे टू रिसाइट प्रोजेस। ओके, सो दिस इज पर्टिकुलर प्रोज कॉल्ड शार्दूल विकृति। तो एक साथ बोलेंगे तभी ट्यून आएगा। जैसे सदगोस्वामी अष्टकम का ट्यून है, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परम जन्मादयस्य तो दया वितरता चार्थेषु अभिज्ञस्वराः। तो थोड़ा सा पॉज रहता है उसमें, लाइक दैट। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसके बाद फिर और मुह्यन्ति यत्सूरयः
like that. Full listen. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सत्यम परम धीमहि। तो स्वराट नहीं है, स्वराट स्वराट ट मतलब पूरा ट नहीं है, स्वराट means ट is not fully ट halant plus a is equal to ट, but it's just ट halant, right? That's what we see. ट halant means it's half ट, not full ट, right? Like that. So today we are going to just complete this. In this, So we let's wait through. I'll tell you. So, O my Lord Sri Krishna, Son of Vasudeva, all pervading personality incarnate, I offer my respectful obeisances unto you. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Then comes Satyam Param Dhimahi. तो ये मतलब यहाँ से निकल रहा है. O my Lord Sri Krishna, Son of Vasudeva, all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances to you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I meditate upon Lord Sri Krishna, Dhimahi, क्योंकि he absolute truth. Satyam Param, is absolute truth. Param Satya is Krishna. So Satyam Param. And primeval cause of all causes of creation, sustenance, and destruction of manifested universe. What is this? Janmadhyasyato. Janmadhyasyato. The beginning of creation, maintenance, and destruction. Janmadhyasyato. Then comes what? He directly and indirectly conscious of all manifestations. Directly and indirectly, he is conscious of all manifestations. Which one corresponds to this particular translation? Which one corresponds to this particular translation? Anybody can say? Yes. Charthesu Abhijñaswara. He is Itaratas and Anvayad and Itaratas. Directly and indirectly, he is Abhijña, with conscious. Right? And Swarat. Swarat, fully independent. He is independent because there is no other cause beyond him. He is Swarat. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji. Which one? Tene Brahma Hridayarika. This one. Tene Brahma Hridayarika. एक के बाद एक प्रभाव ट्रांसलेशन करें. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion. Yes, which one? Mohyantiyat Surya. As one is bewildered by illusory representation of water seen in fire or land seen on water. कौन सा है? तेजो वारी ऋणाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिश्र. So because of him only, people are seeing this
illusory representation of water seen in fire or land seen in water. Only because of him do the material universes temporarily manifested by reactions of three modes of nature appear factual. Which one is that? Trisargo Vrisha. Trisargo Vrisha. Trisargo मतलब three modes of material nature as well as Trisargo मतलब heavenly planet Bhuloka as well as Pataloka or hellish planet. I therefore meditate upon him. What is this? Which one? I therefore meditate upon him. Satyam Param Dhimai. Dhimai. Again it's coming. So, two times Prabhupada is translating this. Nimai. Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode. Which one? Dhamna Swena. Dhamna Swena. So, abode. Then Sada Nirasta Koga Matlab, which is forever free from illusory representation of material world. The spiritual world is free from all illusory representation, Kuhak, of this material world. Starting from I am this body, and everything belongs to this body is mine. Aham and Mam. सबसे पहले चालू होता है अहम, मैं हूँ क्या body, and everything connected with my body is mine. So this is Kuhak, which is there in this material world, which is not there in the spiritual world. So I meditate upon him, for he is absolute truth. Okay. Now Mayavadi scholars, someone can read from that. Mayavadi scholars argue But that Srimad Bhagavatam was not compiled by Srimad, and some of them suggest that this is a modern creation written by someone named in order to refute such meaningless arguments. Sridhara Swami points out that there is reference to the Bhagavatam in many of the oldest Puranas. This first sloka of the Bhagavatam begins with the Gayatri Mantra. There is reference to this in the Matsya Purana, which is the oldest Purana. In that Purana, it is said about the Bhagavatam that in it there are many narrations of spiritual instruction, that it begins with the Gayatri Mantra and that it contains the history of Vritrasura. Anyone who makes a gift of this great word on a full moon day attains to the highest perfection of life by returning to God. There is reference to the Bhagavatam in other Puranas also, where it is clearly stated that this work was finished in 12 cantos, which include 18,000 slokas. In the Padma Purana, also there is reference to the Bhagavatam in a conversation between Gautam and Maharaj English. The king was advised therein to read regularly Srimad Bhagavatam if he desired liberation from material bondage. Under the circumstances, there is no doubt that the authority of Bhagavatam within the past 500 years, many Erudite scholars and acharyas like Vivek Swami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. And the serious student would do well to attempt to go through them
to better relish the transcendental lesson. Yes. So, Srimad Bhagavatam, Hare Krishna. So, Srimad Bhagavatam, कुछ लोग बोलते हैं क्या श्रीमद् भागवतम व्यासदेव के द्वारा दिया हुआ नहीं है? प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं भोपादेव के द्वारा दिया हुआ है। कोई व्यक्ति भोपादेव करके है जो आया था, कलयुग में आया है और उसने श्रीमद् भागवतम को लिखा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स को जब भागवतम पढ़ते हैं तो उनको दिखता है क्या कि भागवतम की जो लाइनिंग्स है सारी बहुत ही चॉइसेस पोएट्री है। भागवतम के प्रत्येक शब्द बहुत ही चुने हुए हैं और कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। जैसे महत् पदम पुण्य से मुरारे वाला श्लोक है, पदम पदम यद विपदम न तेषां, so many times पदम पदम like that kind of so many, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप क्या लग रहा है क्या, अरे गाते जाओ हम सुनते जाएंगे like that. So beautifully compiled this Srimad Bhagavatam. So some people they say that this cannot be compiled by Vyasdev because Vyasdev has compiled Vedas and they are quite dry and a lot of philosophical things are there. ये भागवतम कितना रस से भरा हुआ है। तो एक ही राइटर एक रसीला चीज लिखेगा और दूसरा क्या लिखेगा, बेरस का चीज लिखेगा, कैसे हो सकता है ना? एक राइटर की अपनी एक टेस्ट होता है, वो हर जगह जहाँ पे लिखेगा एक तरह किस लिखेगा, तो लोगों को समझ में नहीं आता, उन्हें क्या ले ये व्यास देव लिखा हुआ ही देखिए, इसको हटाओ। तो एक्चुअली ये गलत है। व्यास देव के द्वारा पूरा भागवतम लिखा हुआ है, सारे पुराण व्यास देव के द्वारा लिखे हुए। इसका वर्णन व्यासदेव स्वयं अन्य पुराणों में किए हुए। इस पुराण का वर्णन अन्य पुराण में जैसे मत्स्य पुराण में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, श्रीमद् भागवतम का वर्णन। तो सभी पुराण किसको दिखा रहे हैं, कहाँ पे जाना है आपको, भागवतम। तो सभी पुराणों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, या लास्ट में भागवतम पढ़िए। किसी भी भागवतम में किसी श्लोक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हाँ अगर आपको ये चाहिए तो आप जाइए कहाँ, स्कंद पुराण पढ़िए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कुछ भी चाहिए तो क्या पढ़िए, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषः परम। कुछ भी करना है तो भागवतम। तो भागवतम भी स्पेसिफिकली 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक है और साथ साथ में इसमें 10 सब्जेक्ट मैटर का डिस्क्रिप्शन किया गया है, 10 सब्जेक्ट मैटर्स। और कुछ लोग बोलते नहीं, देवी भागवत है, भागवत एक भागवत एक पुराण है जिसका नाम है देवी पुराण, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया लोगों ने। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो क्या है, देवी भागवत है, वही भागवत है। उसमें भी 18,000 श्लोक है, उसमें भी 18,000 श्लोक है, वो भी सुखदेव और परीक्षित के बीच भी समान है। तो काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं कौन सा भागवत है भाई, देवी भागवत है कि ये वाला भागवत है। तो भागवतम मतलब भागवत जो भगवान के द्वारा दिया गया, जो भगवान के बारे में है, तो ये भागवतम। देवी भागवतम कैसे होगा भागवतम पता नहीं, व्हाट लॉजिक देयर से। नंबर ऑफ श्लोकास आर सेट। So this is called Srimad Bhagavatam Puran, which is called Mahapuran. The Mahapuran always deals with how many subject matters? 10 subject matters. And there are Puranas in which the Devi Purana comes, which deals with 5 subject matters. And very specific thing which is there in Srimad Bhagavatam Puran, that's called the story of Dhritarashtra, which is not there in any other Puranas. अगर पुराण की बताना है कि कौन सा पुराण पढ़ना है तो उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताना पड़ेगा, तब पता चलेगा। बेस में जाके उस प्रभु जी से मिलिए। एक प्रभु है जिनका नाम है शिवराज प्रभु, हो सकता है बेस में 2 शिवराज प्रभु भी हो सकते हैं, नाम हो सकता है, लेकिन उस शिवराज प्रभु से मिलिए जो कि मोटे हैं और विश्व रहने के लिए पढ़ते हैं, तो स्पेस अलग हो जाएगी। हाँ थोड़ा स्पेसिफिक डिफिनेशन से पता चलता है। तो डिफिनेशन का भी ये होता है कि उसमें कुछ सिमिलैरिटी होती है और कुछ ऐसा चीज होता है जो कि उसको
एकदम सेपरेट करते हैं अन्य चीजों से, है कि नहीं? तो गाय क्या है, अगर कोई बोले तो गाय एक चौपाया जानवर है। चौपाया जानवर बहुत सारे हैं हो सकते, लेकिन गाय को अगर बताना है कि गाय क्या है, तो बताना पड़ेगा गाय एक चौपाया जानवर है, उसके दो सिंग होते हैं और एक पूंछ होती है, और दूध देते हैं, दूध बहुत सारे चीजें देते हैं, बहुत सारे जानवर दूध देते हैं। और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है गाय का? क्या है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक? कृष्ण को बहुत प्रिय तो है ही, बट देख के कैसे समझ में आएगा कि उसके वो दूध देती है और उसके दो खूड़ हैं, दो खूड़ वाले स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स विच हैविंग दो खूड़, समझते हो? जूता होता है ना, जूता वैसे तो आपके 5 उंगलियां हैं, लेकिन कुछ जो जानवर होते हैं उनके 2 उंगलियां होती हैं, कुछ की एक ही होती है। जैसे हॉर्सेस हैविंग only one solid leg, that's it. So like that, the special characters in the cow. So like that. So this Srimad Bhagavatam Puran, in which Vritrasura is actually glorified, is a demon, but he is glorified because he is a great devotee of the Lord. So there are so many, दुनिया की सबसे ज्यादा commented पुराण जो है वह है श्रीमद् भागवतम पुराण. So many great literary personalities in the history they have commented. So Vishwanath Chakravarti Thakur specifically deals with the original and pure sex psychology, Adhirasha, divide of all mundane inability. The whole material creation is moving under the principle of sex life. In modern civilization, sex life is the focal point for all activities. Wherever one turns his face, he sees sex life predominant. Therefore, sex life is not unreal. Sex life is not unreal, but sex life is real. Right? So its reality is experienced in the spiritual world. The material sex life is but a perverted reflection of original fact. The original fact is the absolute truth, and thus the absolute truth cannot be impersonal. It is not possible to be impersonal and contain pure sex life. Consequently, the impersonalist philosophers have given indirect impetus to the abominable mundane sex life because they have overstressed the impersonality of ultimate truth. Consequently, man without information the actual spiritual form of sex has accepted perverted material sex life as all in all. There is distinction between sex life in the diseased material condition and spiritual sex life. Mr. Prabhupada is telling that because of impersonalist conception of Brahman to be having no form, people in the common masses, they have actually accepted the perverted reflection of spiritual sex life that's called mundane sex. And everywhere there is bombardment of sex life. Everywhere. In this material world, whole material world is just moving because of karma, of the sex. Yes, there is no other reason because this material world is moving. If you remove this particular factor in the material world, you see that material world is just like at halt, cannot move. Cannot move only. So everything is just moving, everything is in action because of this sex life. और impersonalist लोगों ने क्योंकि उनके डिफिनेशन में ब्राह्मण मतलब उनका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो क्या there could be any relationship with light? लाइट में कितना खूबसूरत हो तुम लाइट, ऐसा कोई कविता लिखा है? देखें, उनको देखते ही मेरा दिल धड़कता है, धड़कता है. नहीं. When there is relationship, when there is sex, means there must be two persons. And this sex is also perverted reflection of spiritual sex, which is there existing in spiritual world. Yeah. But that's not having connotation, a negative connotation as there here in material world. That's called Adi Rasha.
And the full exhibition of the Adi Rasa is nothing but Rasa Leela. That's called spiritual sex life, which is there in spiritual world. But of course, in that sex life, there is no what's called pregnancy and all that, and contraceptives. So this is there in spiritual world. So that's what Prabhupada is trying to do. So Satyam, क्या बोला गया? धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम Satyam Param Dhimani. So that is spiritual world from where everything has emanated. Srimad Bhagavatam will gradually elevate the unbiased reader to the highest perfectional stage of transcendence. It will enable him to transcend the three modes of material activities: fruitive actions, speculative philosophy, and worship of functional deities as included in Vedic verses. So, this is what Karma Kanda, fruitive actions, speculative philosophy, Jnana Kanda, and third one is called Upasana Kanda. तो जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा gradually, how he will read? Unbiased. Unbiased मतलब पढ़ के सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ेगा. मतलब he will not apply the principles of Bhagavatam wrongly. He will apply perfectly. He will understand that whatever instructions given by Srimad Bhagavatam is for me. We have to apply it. Then immediately he will be able to come to the level of transcendence. So this is actually Srimad Bhagavatam is meant for, to bring every living on the level of transcendence. Then only we can approach the holy name of Krishna. Now, Rupa, Guna, pastimes, everything becomes manifested on the level of transcendence. That's why it is called, we have a regular reading sessions. Why? Unless we read Srimad Bhagavatam, it's very, very difficult practically to do devotion, perform devotion service. So now today we shall at least recite this particular sloka, text 2. So how it is, immediately brings one to the level of transcendence, which is mentioned in this particular sloka. And also this sloka mentions the second aspect of Mangalacharan. Mainly, there are three aspects of Mangalacharan we discussed previously. What are those? Vastu Nirdesh first, then Pranam and Ashirvad. There are three aspects of Mangalacharan. Vastu Nirdesh मतलब Mangalacharan मतलब क्या subject matter, क्या discuss होने वाला है, वस्तु क्या है. दूसरा है क्या? Pranam. The author will pay obeisances to the deities, the Supreme Lord, the spiritual master. This is called Pranam. And then comes last आशीर्वाद. प्रणाम लेने के बाद तो आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन बिना आशीर्वाद के क्या प्रणाम. तो आशीर्वाद किनको? आशीर्वाद जो राइटर है, जो बोलने वाले हैं, जो वक्ता है, उनको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है, एम्पावरमेंट मिलता है. और साथ साथ में जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी क्या आशीर्वाद है वो भी बताया गया. समझ रहा? तो इसमें हम लोग देखेंगे वस्तु निर्देश एज वेल एज आशीर्वाद. कुछ आशीर्वाद भी दिया गया है कि नहीं? तो पहले श्लोक में भी हमने क्या देखा? प्रणाम, धीमहि और वस्तु निर्देश. एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है? सारा का डेफिनेशन, पूरा डेफिनेशन है एब्सोल्यूट ट्रुथ का पहला श्लोक. वस्तु निर्देश एज वेल एज श्रीव्यास देव क्या बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि. इसे प्रणाम. इसमें वस्तु निर्देश और आशीर्वाद भी है. धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम सदा वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु विपदं तापत्रयोन्मूलनम्. श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
किं पापैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते अत्र। It will go like this. सद्यो हृद्यवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो ये वाली श्लोक है, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना चाहिए। यस, इजी श्लोक है। सारे श्लोक इजी तभी होते हैं जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, नहीं तो वो डिफिकल्ट है। अच्छा प्रूव everybody, we are giving consistent smile by reading these slokas. Means he has such a long relationship with these slokas. If you have some relationship with some person, by coming closer to him, you smile, you laugh. He is enjoying the life. Anyway, Achut, you like to recite without seeing? Please recite. You can say. So you need to be little focused so that you could do it. Otherwise, dharma prajita kaito matra param वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं पापैरीश्वरः सद्यहृद्यवरुद्धतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। धर्म मतलब रिलीजियसिटी, प्रज्जित मतलब कंप्लीटली रिजेक्टेड, कैतवः कैतवः कवर्ड बाय फ्रूटिंग इग्नेंस, अत्र हियरिंग, परमः द हाईएस्ट, निर्मत्सराणाम of the 100% pure in heart, निर्मत्सराणाम, निर मतलब नहीं, मत्सर मतलब एनवियसनेस, जिनके हृदय में बिल्कुल भी एनवियसनेस नहीं है। सताम मतलब डिवोटीज, वेद्य मतलब अंडरस्टैंडेबल, वास्तवम फैक्चुअल, अत्र हियरिंग, वस्तु मतलब सब्सटेंस, शिवदम गिविंग वेल-बीइंग, शिवदम, दम मतलब देना, शिव मतलब वेल-बीइंग, the giver of well-being, Shivanam. इसलिए भगवान शिव का नाम है शिव, because he is well-wisher, best well-wisher। जो कोई भी उनके पास जाता है किसी भी विश को फुलफिल करने के लिए, तुरंत भगवान शिव उनको देते हैं, है कि नहीं? इसलिए आप लोग को भी ट्राई करना चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप सीधे भगवान हमारे बेस के सामने ठाकुर जी, सामने शिव ठाकुर है कि नहीं? तब बीच में जाता है तो शिवदम तुरंत ऑस्पिशियसनेस मिलता है। तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय मतलब थ्री फोल्ड मिजरीज, उन्मूलनम मतलब causing uprooting of। These words are quite very acquainted words, right? ऐसा हम लोग यूज करते हैं, हिंदी वाले लोग यूज करते हैं, उन्मूलनम करना, इरेडिकेट, uprooting। श्रीमद मतलब ब्यूटीफुल, श्रीमद मतलब ब्यूटीफुल, भागवते भागवत पुराण, ब्यूटीफुल भागवत पुराण, महामुनि द ग्रेट सेज व्यास देव, कृते हैविंग कंपाइल्ड him what is what the need, pare others, Ishvara the supreme lord, sadhya at once, hridi within the heart, aruddhate becomes compact, atra hearing, kritibihi by the pious man, sushrushubihi by culture, tatchana without delay। तो इसका मतलब क्या होगा? धर्म प्रज्जित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ पे वस्तु क्या है? श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में जितने भी, कैतो मतलब क्या था? चीटिंग,
जितने भी चीटिंग प्रकार के धर्म है उसको क्या किया गया है, वर्जित कर दिया गया है, फेंक दिया बाहर, भागवतम से बाहर, बुक से बाहर। तो क्या फेंक दिया गया है, कैतव धर्म को फेंक दिया गया है। कैतव धर्म क्या है वो आगे वक्त पता चलेगा। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, इनके लिए कौन इनको अच्छे से रिलीज कर पाते हैं, परमो निर्मल सरानाम सताम, जो व्यक्ति जिनके हृदय में अन्य जीवों के प्रति एनवियसनेस नहीं, मात्सर्यता नहीं है। हमारे पास प्रत्येक जीव के अंदर में क्या है, हृदय में मात्सर्यता है, इसलिए हम लोग बॉडी में है। मात्सर्यता मतलब अन्य जीवों के प्रति हिंसा या ईर्ष्या, या फिर अन्य जीव अगर एडवांस कर रहे हैं तो उनको नीचे खींचने वाली जो इच्छा होती है, असहायता। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य, पर उत्कर्ष, दूसरे के एडवांसमेंट को देख के जो सहन नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या, उनके अंदर में क्या है, एनवियसनेस, मत्सरता। In this material world, who is free from matsarya? Everybody is having filled with matsarya. मतलब nobody of us will get read Bhagavatam, isn't it? No. परम निर्मल सराना सताम, सताम मतलब डिवोटीज। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु के मतलब, इसमें श्रीमद् भागवतम में किसकी चर्चा की गई है, वास्तव वस्तु की चर्चा की गई है। वास्तव वस्तु क्या है, तो कभी चेंज नहीं होता, जैसे कभी भी चेंज नहीं होता, वास्तव है, रियलिटी, हमेशा रियलिटी है, था, रहेगा, और सब कुछ चेंज हो रहा है। अवास्तव वस्तु है कि नहीं, a person, for a particular person, the relationship between both of them is always changing. Okay. Like suppose Kuntal Kundu, the same person for his mother, what was Kuntal Kundu 20 years before is not the same Kuntal Kundu. Change. Right? The body is fully changed. And this love and affection, it was there between 20 years before. That love and affection may not be there now, because the vastu has been changed. So what mother is thinking that the vastu of my love, is that vastav or avastav? Because if she is considering or he is considering to the body, then it's avastav. But what is vastav? The soul is vastav, which hardly people know. And who is vastav? Krishna is vastav. Hardly people then understand. So vastav vastu matlab, there are three vastav vastus: Jeev, Bhagwan, and relationship between Jiva and Supreme Bhagwan. There are three vastav vastus: Bhakti, Bhagwan, and Bhakti. So इसकी चर्चा कहाँ की गई है, श्रीमद् भागवतम में। और बाकी जितने भी चीजें सबको झाड़ू लगा के हाँ बाहर कर दिया गया। सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, बाथरूम के मतलब अपना रूम क्लीनिंग करते हैं, प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठ के सारे अपने बेडी को फोल्ड करके रखते हैं, उसका उठते हैं तुरंत झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। बहुत अच्छा हैबिट है, आप लोग उसको बनाए रखिए। तो क्या कहते हैं, प्रोचित कर दिया गया श्रीमद् तात्पर्यण मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेश्वर। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, महामुनि व्यास जी के द्वारा दिया गया है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस श्रीमद् भागवतम का रेगुलर पाठ करने से और क्या मिलता है, ये आशीर्वाद है शिवदम, और ये भी आशीर्वाद है क्या, तात्पर्यण मूलनम। क्या तात्पर्यण मूलनम, threefold miseries will be eradicated, guaranteed। मतलब प्रभु जी बहुत तबीयत खराब रहता है, ये समस्या वो समस्या है, अरे सारी समस्या का निदान यहाँ पे है भागवत।
भागवतम पढ़ने के लिए लगाओ, देखो सारी समस्याएं कैसे निकल जाती है। लेकिन प्रभु जी कैसे, कहीं हम ही ना निकल जाए समस्या के साथ साथ। यस, सारी समस्या आपके निदान हो जाएगी कैसे? श्रीमद् भागवतम पढ़ते। लेकिन भागवतम पढ़ते क्यों नहीं लोग? क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते? कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? लेकिन आप दोनों का हमेशा समस्या रहता है, हर समस्या रहता है, क्यों? हाँ? यहाँ पे साफ साफ भागवतम व्यास व्यास बोल रहे हैं, वेद व्यास ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। बोल रहे हैं ताप त्रैण मूल, ताप मतलब दुख, त्रैण मूल मतलब तीन तरह का दुख का उन्मूलन होता है। तीन तरह का दुख क्या है? प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉट बॉडी एंड माइंड, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज, प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज है कि नहीं? यस नो? यस। प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ बॉडी एंड माइंड है कि नहीं? यस नो? यस। तो मतलब क्या, आप लोग भागवत नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, इफेक्ट विल नेवर बी रिड्यूस्ड। क्यों? यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, क्यों नहीं, क्यों रिड्यूस नहीं होगा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत में महामुनि के द्वारा बनाया गया है। क्या जरूरत है दूसरी किताबों की? क्यों परे ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते, सद्य मतलब तुरंत, हृदय में अवरुद्धते मतलब, अवरुद्धते मतलब फंस जाते हैं, अवरुद्ध हो, अरे गला अवरुद्ध हो गया है। गला अवरुद्ध हो गया मतलब क्या? गले में कुछ फंस गया है। तो पानी पिया तो गले, या फिर कुछ जल्दी जल्दी प्रसाद ले लिया तो तो खड़े खड़े चलते जाते प्रसाद लेते हैं, तो कभी अटक जाते हैं यहाँ पे, तो अवरुद्ध हो गया। यहाँ बताया जा रहा है सत्य हृदय अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषति दर्शना, ईश्वर सत्य हृदय अवरुद्धते मतलब ईश्वर जो है, जैसे श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे तो हृदय में जाके बस जाएंगे। ईश्वर तुरंत, सत्य मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ देर के बाद, नहीं, सत्य मतलब क्या लिखा गया है? तो प्रभुपाद जी के क्या इसका मीनिंग है? सत्य मतलब क्या है? सत्य एडवांस मतलब जैसे चालू किया रिसाइटेशन भागवत का, वैसे ही तुरंत क्या होता है? भगवान अंदर घुस के अटक जाते हैं। जैसे किसी को अंदर बोला आधा आधा अंदर, आधा आधा लड्डू मिल रहा है, अंदर करके बुला के अंदर से ताला लगा दिया और लड्डू मिलेगा। कई बार मैं भी करता हूँ, मुक्ति को बुला के अंदर से ताला लगा करके कुटाई चलती है, कहना पड़ता है। तो सत्य हृदय अवरुद्धते, अंदर घुसाया लेकिन बाहर निकलने नहीं दिया। तो किनके साथ होता है? भगवान के साथ होता है। किनके हृदय में होता है? भक्तों के हृदय में होता है। कैसे होता है? भागवतम का पाठ करने से। और कब होता है? कितने देर में होता है? एटवंस, एटवंस होता है। सत्य हृदय अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषति दर्शना, तत्क्षणात्, सुनने के तुरंत बाद में तुरंत तत्क्षणात् होता है, समय नहीं लगता। तो हम लोग तो ध्यान क्या, कितना मिनट, कितना पढ़ते दिन, कितना मिनट गिन के पढ़ते हैं प्रभु का सिद्धार्थ, बुक रीडिंग करते हैं? आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट आप भागवतम पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तब तो आपके हृदय में भगवान वाप्त हो गए और उसमें हो गए, है कि नहीं? यस नो? नहीं? यस? नहीं नहीं, ग्रेजुअली कहाँ लिखा हुआ है? बिना मतलब का आप मेरी मत दो। No, gradually transcending is different thing, and blocking Krishna in the heart is different thing. Don't mess with two things. यहाँ पे at once लिखा हुआ मतलब at once, जैसे भागवतम चालू किया पढ़ना, वैसे ही हृदय में कृष्ण जाके फंस जाते हैं। जो लिखा हो वो पढ़ना है, अपना फिर से मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है। हृदय ट्रांसेंडेंस इज समथिंग एल्स,
But what is being told here? As soon as Vishwanath Chakravarti Thakur tells, forget all reading Bhagavatam. If somebody desires that I will read Bhagavatam, Krishna gets ready. जैसे कोई डिजायर कर रहा है कि आज मैं भागवतम पढ़ूंगा, तो कृष्णा भी उधर से रेडी होते हैं, आज मैं इसके हृदय में घुसूंगा, जैसे ही चालू करेगा पढ़ना मैं घुसूंगा, कृष्णा से ठाकुर बोलते हैं। उधर से इधर भक्त रेडी होता है मन में कि मैं भागवतम पढ़ूंगा, उधर भगवान भी रेडी घुसने के लिए इधर सत्य, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सत्य। तो भागवत पढ़ना तो भागवतम पढ़ना, आराम से बैठ के भागवतम को पढ़िए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में खोल के पढ़ लिए। क्यों पढ़ लिए? क्योंकि सामने रिपोर्ट में लिखा है इसलिए पढ़ रहे हैं। मोबाइल में पढ़ लिए होगा, अरे किताब में पढ़ी हुई है, किताब उठाओ, अच्छे से बैठ जाओ, मोबाइल फोन को थोड़ा सा रख दो, आधे घंटे तो मोबाइल फोन को रख दो कम से कम, फिर अच्छे से पढ़ो, देखो। लेकिन वो तो करना नहीं होगा, दिस इफेक्ट इफ यू डिजायर सो ऑल्सो। अदरवाइज पढ़ने के सिर्फ वो रिचुअलिस्टिक काम करने की, रिचुअलिस्टिक जो खाना पड़ती, देन कृष्ण फॉर हु आर क्लीन इन हार्ट, they are simple in the heart, for them it will surely work. Yes, and for them, if Krishna comes in the heart, then automatically all that sinful credits, everything finishes. Stop त्रयोड मूलन तुरंत होना, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है किताब त्रयोड मूलन में। भक्तों के जीवन से किसी भी 3 प्रकार के ताप का एक भी मार्ग नहीं दे सकते जिनके जीवन में भागवतम है। अगर है तो फिर भागवतम लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे, सिंपल फैक्ट। तो ये यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया है किनके लिए? जो भागवतम पढ़ते हैं। छोटा मोटा आशीर्वाद देखें, ताप्त्र उन्मूलन, जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान चलता रहता है, एक भी बंदा पोलियो का वायरस के साथ नहीं होना चाहिए। सारे के सारे लोगों को पोलियो वैक्सीन खिला के पोलियो को उन्मूलन किया। मतलब क्या? हमारे जीवन में एक भी दुख नहीं होना चाहिए, पूरा दुखों का समूल नाश। दिस इज गॉड श्रीमद, and this will surely, if this book is there, that's it. What more book you require? Yes, we require the book, we require the Karina. Yeah, that's required. But ultimately, you also know that after getting job, that's also of no use. That's not true. है कि नहीं? ऐसे भी तो पढ़ते नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, दिन बार रात भर एक करके। ये नहीं करना चाहिए। पढ़ना, प्रहलाद महाराज पढ़ के हमें, प्रहलाद महाजन है वो पढ़ते भी थे, तो सारे बीएस प्रभाव लगाते थे, खरीदा लगाते थे, वो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, प्रोफेसर पढ़ाता पढ़ते थे। लेकिन हृदय में क्या घुसाते थे? नारद मुनि की बातों को ही हमेशा स्मरण करते थे। So this is called Prahlad Maharaj. We have to follow in his footsteps. Krishna always there in the heart of Prahlad Maharaj. So how? Because he was always remembering Krishna, always thinking and glorifying Krishna. And that's what Srimad Bhagavatam is. Okay, so we shall discuss it later on.